We don't see it. People don't see where are we getting this freshness. It's from the underground springs of water, and the tree has put its root into the deep places and gets water from there. कभी कभी हम सोचते हैं कि यहाँ पर कोई नदी तो है नहीं, तो इस पेड़ को जल कहाँ से मिल रहा है। परंतु उस पेड़ की जड़ें इतनी ज्यादा गहरी होती हैं कि वो भूगर्भ में पानी के सोते के पास अपनी जड़ों को पहुंचा देती हैं, जहां से उसको पानी का सोता मिलता है। Sometimes we see in our gardens also, we have these tubes underground, but the tubes are bringing water to the plants here and कभी कभी हम अपने बगीचों में भी देखते हैं कि भूमि के नीचे ट्यूब लगी होती हैं, जहां से पानी इस बगीचे में पौधों तक पहुंचता है। there. That's just a symbol, a picture of how there can be freshness in our life if there are roots getting water from of the power of the Holy Spirit. और इसी प्रकार हम अपने आत्मिक जीवन में भी देखें तो यदि हमारे पौधों में फल है, तो फल का स्रोत पानी कहाँ से आ रहा है? वो पवित्र आत्मा का जल है। Directly from the Lord. We don't have to go to anyone and say, please pray for me that I'll get the Holy Spirit power. No. We ourselves can put our roots deep down and say, Lord, you're the source of freshness of the Holy Spirit. I come directly to you. प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि वो हमारे निमित्त इसलिए प्रार्थना करें कि हम पवित्र आत्मा से भरे। हमें स्वयं बैठकर प्रभु से प्रार्थना करने की, पवित्र आत्मा आप ही वो स्तोत्र हैं जल का। प्रभु, मैं आप में जीवन पाऊं और मैं आपके द्वारा जल को प्राप्त करूं। Please give me that freshness in my life मेरे जीवन में भी प्रभु आप वो ताजगी दें। every day. So, and Jeremiah, yeah, then time is running fast, so we need food. समय तेजी से बीत रहा है। हाँ, अब हमें भोजन की आवश्यकता है। The plants just need not just water, but they need food. पौधों को केवल पानी की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको खाने की भी जरूरत है, पोषण की भी जरूरत है। That is the manure, and you know what the food for us is? You know that verse Matthew 4:4. और आप जानते हैं हमारे लिए जो भोजन है वो कौन सा वचन है? मत्ती 4:4। Jesus told the devil, man shall not live by bread alone, but by every word which proceeds from the mouth of God. यीशु मसीह ने शैतान से कहा, मत्ती 4:4 में, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। Directly from God. God's word feeds us. प्रभु का वचन हमें पोषण देता है, वो खाना खिलाता है। Nourishes us. You know, sometimes our children come to us after playing and say, Mom, I'm hungry. और प्रभु का वचन ही है जो हमें पोषण देता है। कभी कभी हमारे बच्चे हमारे पास आते हैं और कहते हैं, माँ मुझे बहुत भूख लग रही है। What a precious thing it is to hear from our children. If they're not hungry, we think, what happened to you? What happened to my child? कितनी अच्छी बात है, बहुमूल्य बात है कि हमारे बच्चे आके हमसे कहते हैं हमें भूख लगी। यदि उन्हें भूख ना लगे तो हम चिंतित होते हैं कि क्या हो गया, तुमको भूख क्यों नहीं लग रही, क्या बात है? She's not hungry. She has no appetite. There's something wrong with her. Should we take her to the doctor? कुछ तो गड़बड़ है जो मेरे बच्चे को भूख नहीं लग रही, इसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। Why is she not hungry? But when our children come to us and say, Mom, I'm hungry, it's so good. Yeah, let me find. Oh, there is this thing over here. There's crackers, there's cheese and crackers, there's और जब हमारे बच्चे आते हैं और कहते हैं हमें भूख लग रही है, तो कितनी खुशी की बात है। और हम फिर वहां पे खाना ढूंढते हैं, अच्छा यहाँ क्रैकर्स हैं, अच्छा यहाँ पे चीज है खाने के लिए। fruit. There's all. Take out this and eat that. Smoothie, whatever you want. यहाँ पे फल है, यहाँ पे स्मूदी है, जो भी खाना यहाँ से निकाल कर खा लो। When we tell the Lord, Lord, I'm hungry. और हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु मुझे भूख लग रही है। Jesus, Lord Jesus, I'm hungry. Please feed me with that living manna. प्रभु मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे उस जीवित मन्ने का पोषण दीजिए प्रभु। The living word. We need to come. Nobody need to tell us. Don't have to come to church and make the elders speak to us and
stimulate an appetite in our hearts. No. चीज की आवश्यकता नहीं कि हम कलीसिया में जाएं और जो पुण्य वहां पे बोले उनके द्वारा हमारे अंदर ये भोजन, ये भूख उत्पन्न हो, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। We ourselves come to the Lord and say, Lord, I'm your child, I'm hungry. हमें स्वयं प्रभु के सामने कहना है, प्रभु मैं आपकी बेटी हूँ प्रभु, और मैं भूखी हूँ, I need that living word. Please मुझे वो जीवित खाना चाहिए प्रभु, मुझे दीजिए। speak to me. And God's word nourishes us, feeds us. और जब हम ये प्रार्थना करते हैं तो प्रभु का वचन हमें पोषण देता है, वो हमें रोटी खिलाता है। There's another verse in Isaiah 30, verse 21. Look एक और वचन है यशाया अध्याय 30 का 21, अध्याय 30 का 21। at it later, but when you have time. Isaiah 30, verse 21 says, You'll hear a voice behind you. When you turn to the left or right, you'll hear a voice behind you saying, This is the way, walk in it. यशाया 30 का 21 जो कहता है, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। Sometimes we come to a fork in a road and we think, which way shall I turn? कभी हम जब किसी रास्ते पे जाते हैं तो वहां पे मोड़ आता है और हम सोचते हैं कि हमें अब किस दिशा की ओर बढ़ना चाहिए, Which decision shall I take? मुझे क्या करना चाहिए, This one or that one? We tell our daughters who are thinking of their studies or our children when think of their studies. और ये निर्णय लेना चाहिए। हम कभी कभी जब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे हमें बात करनी है, Especially college education, or when they're thinking of marriage, shall I think of this guy or that guy? चाहे वो कॉलेज में पढ़ाई हो या चाहे शादी की बात हो, कि क्या मैं इस व्यक्ति से शादी करूं या मैं उस व्यक्ति से शादी करूं। When you come to the fork of the road in any situation, the Lord will hear us, will speak to us from His word and say, अपने जीवन की ऐसे परिस्थिति में ऐसे मोड़ पर आए तो वहां प्रभु यीशु मसीह है जो हमसे यहाँ पर इस मोड़ पर बात करेंगे। This is the way, walk in it. ये वो रास्ता है, इस पर चलो। That's the promise that the brother who conducted our marriage gave us. और यही वो वायदा है जिस भाई ने हमारी शादी कराई थी प्रभु की प्रस्तुति में, उस भाई ने हमें ये वचन दिया था। Whenever when you hear your voice, you'll hear a voice behind you saying, This is the जैसे तुम्हारे कानों में एक शब्द पड़ेगा कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। way, walk in it. Whenever you're in doubt, say, Lord, which way shall I take? जब भी हम जीवन में किसी शंका में हैं, तो हम प्रभु से पूछें कि प्रभु मैं कौन सा मार्ग लूं। The Lord will tell us through His word. I remember that प्रभु हमें बताएगा, अपने वचन के द्वारा प्रभु हमें इसका उत्तर देगा। time when Brother Ian passed away and we were in Colorado and जो याद है वो समय जब भाई यान प्रभु के पास चले गए थे, हम कोलोराडो में थे। Santosh and my husband were thinking of going and they had to get their ticket all the way to India in a संतोष और मेरे पति को भारत जाना था और उनको एयर टिकट्स चाहिए थे। few hours. They had to change at one airport and get a ticket, get visas, and they had to decide. And the Lord gave my husband a specific word. और उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना था, वीजा चाहिए थे, टिकट चाहिए थे, और वहां पे प्रभु ने बहुत ही साफ तरीके से मेरे पति से बात की You shall go forth with joy. कि तुम आगे बढ़ोगे, खुशी के साथ तुम आगे बढ़ोगे। And that was his regular Bible reading, and that confirmed. और वो उनकी निरंतर जो बाइबल की अध्याय का मनन था, और इस वचन के द्वारा ये पूरा निर्धारित हुआ। Because you can't take such a big journey, and you know how flights are delayed. You get stuck in one airport. आप इतने बड़ा जो है जर्नी को आप नहीं ले सकते हो, यात्रा को, क्योंकि आप जानते हैं कई बार फ्लाइट जो होती है वो लेट हो जाती हैं। And the funeral would have been over if he was stuck in an airport. And और फ्यूनरल जो है वो खत्म हो जाता यदि वो किसी
हवाई अड्डे में रुके होते इंतजार करने के लिए, didn't reach in time. What's the use of going there? अगर समय पे पहुंच ना पाए तो फिर फायदा क्या है जाने का। He wanted to go there to encourage the family and the church family. वो वहां जाना चाहते थे ताकि उनके परिवार को और कलीसिया के परिवार को वो प्रोत्साहित कर सके। By going there in time, and the Lord gave a word, and that gave him the boldness. Yes, I'll go. और प्रभु ने उनको वचन दिया, उस वचन के द्वारा उनमें वो दिलेरी आई कि हाँ मैं जाऊंगा। Like that, in every step, may not be a word from God, maybe a word from our husbands, maybe a word from the elder, a word from the Bible. हो सकता है हमारे जीवन की ऐसी परिस्थिति में हो सकता है प्रभु का वचन, या अगर प्रभु के वचन के द्वारा हमारे पतियों के द्वारा प्रभु बात करे, एल्डर्स के द्वारा प्रभु बात करे, या अपने ही वचन के द्वारा प्रभु हमसे बाइबल अध्ययन में बात करे। And the Lord says, in our heart says, yes, you go ahead and do this. और प्रभु मेरे हृदय में बोले कि हाँ आगे बढ़ो और इस कार्य को आप करो। I'm with you. You shall go in joy. मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम खुशी से आगे बढ़ोगे। So that's what the Lord speaks to us. और ये है जो प्रभु हम सबसे बात करते हैं। And the Lord, and we can't just select our favorite verses and say, oh, I like this verse. और हम बाइबल से अपना कुछ सबसे प्रिय वचन नहीं चुन सकते कि हाँ ये मुझे बहुत पसंदीदा वचन है। The Lord's my shepherd, I shall not want. He makes me lie कि प्रभु down. कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी, वो मुझे हरी हरी चरियों में चराता है। That's my favorite chapter. ये मेरा पसंदीदा अध्याय है। No, the Lord gives us His word, His favorite verse to us. नहीं, प्रभु हमें अपना वचन देता है, उसका पसंदीदा वचन वो हमें प्रदान करता है। My child, this is the verse I have for you. This may be difficult, maybe a little spicy. This. मेरे बच्चे, ये वो वचन है जो मैं अभी आपको देना चाहता हूँ। हो सकता है ये थोड़ा सा मुश्किल है, हो सकता है ये थोड़ा सा मसालेदार है, मिर्च से भरा है। Food, maybe a little bland. हो सकता है ये वचन थोड़ा सा फीका लगे आपको इस परिस्थिति में। But this is my food for you for today. पर आज के लिए यही मेरी रोटी है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। We take it. Yes, Lord. Thank you. और हमें इस रीति से लेना है कि प्रभु धन्यवाद, मैं इसको लेती हूँ। Talking about spiciness, I was thinking how God's word prunes us, cuts us. और जो तीखा की बात मैंने की, खाने में तीखा, वो इस प्रकार है कि प्रभु किस प्रकार हमको काटता है, प्रभु हमको छांटता है। So we should allow the Lord to prune us. You know, I was thinking of the Hebrews. There's a verse which says, God's word, Hebrews 4:12, God's word is like a two-edged sword. Two-edged means both edges cut. मैं इब्रानियों 4:12 सोच रही थी, जहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन दो धारी तलवार है, तो दोनों भागों से बहुत तीखे से काटता है। God's word cuts. And the closest to that I can think of is a laser. और वो बहुत ही तेजी से और तेज धार से काटता है। और उसके सभी अगर मैं किसी उदाहरण को लूं तो मुझे लेजर जो छुरी है उसकी याद आती है, लेजर छुरी। You know, if you have seen laser knives, I don't know, but in medical, in surgery and in the dentist surgery, they use a laser knife. It's just like मेडिकल सर्जरी में यहाँ जो दंत चिकित्सक होता है वो भी इसी लेजर नाइफ का इस्तेमाल करता है सर्जरी के लिए। a thick needle, but it goes round and in every direction. ये बहुत ही, जो देखा जाए तो बहुत मोटी सी छुरी है, परंतु बिल्कुल गोल गोल उस घाव के बिल्कुल गोल गोल में ये छुरी घुस सकती है। Cuts. That's how they do laser surgery. और इस प्रकार गोल गोल घुसकर वो काटती है और इस प्रकार वो सर्जरी को करते हैं। So God's word is like that. It cuts in every direction and says, I'll take off this bad tumor from you. और प्रभु का वचन में इसी प्रकार है, वो चारों तरफ से हमको काटता है और कहता कि मैं इस ट्यूमर को यहाँ से निकालूंगा। Life, this thing which you don't want in your life, which I don't want, please allow me and I'll take it off. यदि आप मुझे अनुमति दो तो ये जो चीज है जो बिल्कुल आपके लिए अच्छी नहीं है, जो आपको भी पसंद नहीं है और मुझे भी पसंद नहीं है, यदि अनुमति दो तो मैं इस ट्यूमर को भी निकाल दूंगा आपके जीवन से। Fast as I can and as painlessly as I can.
और मैं बहुत जल्दी इस कार्य को करूंगा, जितना कम दर्द हो सकता है उस कम दर्द में मैं इस कार्य को करूंगा। We allow the Lord to do that. बस हम अनुमति प्रभु को दें कि हाँ प्रभु आप ये कर सकते हैं मेरे जीवन में। Cut. And that's what in John 15 says, if we abide in him and he abides, and allow the Lord to cut us and prune us. Every branch which is pruned, which doesn't bear fruit, he prunes. और इसी प्रकार होता है, यदि हम उसमें बने रहें, उसका वचन हम में बना रहे, तो वो हमें छांटेगा और हर वो शाखा जो उससे जुड़ी है उसको वो छांटेगा, So that more fruit will come. ताकि और भी ज्यादा फल उस शाखा से उत्पन्न हो सके। Here again about fruitfulness. So God's word guides us, वचन हमारा मार्गदर्शन करता है, purifies us, disciplines us, हमें शुद्ध करता है, वो हमें अनुशासित करता है, and he he works a work. That's why it's so important to allow God's word to do work in our hearts. बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रभु के वचन को हम अपने जीवन में कार्य करने दें और अधिकारी से बसने दें। Like the memory verses we teach our children and we learn. वचन होते हैं वो हम भी याद करते हैं तथा अपने बच्चों को भी हम उसको याद कराते हैं। And we read daily portions, we think. और हम रोज का प्रतिदिन का मन्ना भी पढ़ते हैं। Maybe this word is not for me for today, but maybe some time later that word will come in my heart. And आज के लिए जरूरी ना हो, जरूरत नहीं है, पर तू आगे चलकर ये वचन मेरे बहुत काम आए, मुझे याद आए। speak to us and lift us up. I have felt that. I have realized, seen that many times in और मैंने ये चीज महसूस की है, मैंने कितनी बार अपने जीवन में इस बात का अनुभव my life, where the Lord has used some word come back to my mind and speaks to me and guides me and बहुत पहले सुना है, वो मेरे मन में आता है और वो मुझे चिताता है और मुझे आगे अगुवाई करता है। Then last session we were talking about how there are things which are like weeds in our garden. पिछले सभा में हम बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे जंगली बीज हैं जो हमारे इस खेत में पैदा हैं, Makes the soil less fruitful. इसकी वजह से जो मिट्टी है वो कम उपजाऊ हो जाती है। We are meditating on thorns and thistles, कटारों के ऊपर मनन कर रहे थे, which the Lord Jesus says they are love of money and love of material things and cares of this world. पैसे की चिंता है, धन का धोखा है, इस दुनिया के पदार्थों की चिंता है, आंखों की अभिलाषाएं हैं। Have time, you can look back, listen to that message. यदि आपके पास समय है तो आप फिर से उस संदेश को सुन सकते हैं। And how love of material things can and the love of money and cares of this world can be like weeds in our garden, in our और किस प्रकार धन का धोखा, इस संसार की चिंता और इस प्रकार सारी सुविधाओं के लिए सोचना, इन सब का के कारण हमारे जीवन में क्या हो सकता है heart and hinder the plant from growing. और इस प्रकार यही सब बातें जो है धन का धोखा, शरीर की चिंता, आंखों की अभिलाषाएं, इन सब के कारण हमारे हृदय की भूमि में क्या फर्क पड़ सकता है। And Satan is so clever. If we read the Matthew 13, the later part, there's another parable. शैतान बहुत चालाक है। अगर आप मत्ती अध्याय 13 का निचला भाग पढ़ेंगे, Where Jesus says, the seed is sown, the kingdom of God is like a farmer who has sown seed in the garden. प्रभु का राज्य जो है इस प्रकार है जैसे इस किसी किसान ने उस खेत में बीज को बोया हो। And it starts growing. And then sometime in the night, the devil comes, the enemy comes and sows tares. और रात को जो है वो दुश्मन आ जाए और उसी खेत में जंगली बीज को बो दे। Weeds which look just like wheat or the grain which we have planted, but actually they are poisonous things.
वो जो बीज है वो बिल्कुल उसी प्रकार के बीज नजर आते हैं जो हमने बोए, परंतु अगर सच्चाई में देखा जाए तो वो बहुत ही जहरीले बीज हैं and they harm us. We have और वो हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते to हैं। be so alert, but the Lord says, don't worry. A day will come when I'll send my angels and pull out those tares. और प्रभु कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक दिन आ जाएगा जब मैं अपने स्वर्गदूतों को भेजूंगा और वो इन सारे जो जंगली बीज हैं उनके पौधों को उखाड़ के फेंक देंगे। And separate. We don't have to worry. Leave it to the Lord. Lord, in this church, when people are coming, हमें इन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब बातें आप प्रभु पर छोड़ दीजिए। प्रभु इस कलीसिया में लोग आते हैं and they are spreading wrong things, wrong doctrine, doubt in our children's. और वो गलत बातों को इस कलीसिया में फैला रहे हैं, गलत उपदेशों को इस कलीसिया में फैला रहे हैं, हमारे बच्चों के अंदर भी बहुत बहुत गलत प्रभाव को डाल रहे हैं, शक उत्पन्न कर रहे हैं। And the Lord comforts and says, don't worry, I'll take care of it. प्रभु कहता है या बांधो, चिंता ना करो, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। You don't have to worry, don't have to doubt. You do your part. The चिंता मत करो, शक मत करो, आप अपना भाग निभाओ, आप अपने कार्य को पूरा करो, अपने कर्म को करो। Lord tells to allow the seed of the good seed to fall into your heart. प्रभु को अनुमति दें कि उस अच्छे बीज को अपने हृदय रूपी भूमि में डालने दें। Good seed is the seed of the kingdom of God, ये अच्छा बीज प्रभु के राज्य का बीज है, righteousness, peace, and joy. धार्मिकता के बीज है, शांति का बीज है, आनंद का बीज है। Fruit of the Holy Spirit will come out in your life. और इस प्रकार पवित्र आत्मा के फल आपके जीवन से प्रकट होंगे। And I was just thinking of a very precious word which spoke to me. और मैं सोच रही थी एक बहुत ही बहुमूल्य वचन के बारे में जिसने मुझसे बात की। No, when when Nicodemus came and to meet Jesus, and Jesus was telling him, "You must be born again." जब निकोदेमस यीशु मसीह से मिलने आया और यीशु मसीह ने उससे कहा कि आपको नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, Such an intelligent, he was a doctor of theology or something like that. वो बहुत ही बुद्धिमान और धर्मशास्त्र का गुरु था, बहुत ही ज्यादा बुद्धिजीवी व्यक्ति था निकोदेमस। Learned man, but he couldn't understand what it is to be born again. वो इस बात को नहीं समझ पाया कि नए सिरे से जन्म लेने का अर्थ है क्या। But to simple children, we tell them, accept Jesus into your heart. Ask Jesus to come into your heart. They do it readily and they have full of joy and say, Mom, I asked Jesus to come into my heart. और यदि हम छोटे बच्चों को कहें कि आप प्रार्थना करो कि प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आए, तो कितनी दीनता के साथ उस प्रार्थना को करते हैं और आनंद के साथ कहते हैं कि हाँ माँ, मैंने प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर आए, मेरे जीवन में आए, मेरे हृदय में आए। So we come with intelligence and cleverness, we miss, but we come as little children. इसलिए अगर हम बुद्धिमानी और चतुराई के साथ आएंगे तो हम लोग बहुत कुछ छूट जाएंगे, परंतु यदि हम दीनता के साथ बच्चों के समान आएंगे तो हम इसको पा जाएंगे। I was reading this wonderful verse in Isaiah 52. मैं एक बहुत ही अद्भुत वचन पढ़ रही थी यशायाह 53:2 में। Example of Jesus. If you turn to that Isaiah 52, मसीह यीशु का उदाहरण है, यदि आप इस भाग को पढ़ें, so precious. कितना बहुमूल्य है। Let me turn to that. He says in verse 2, I read it somewhere, these verses in a different rendering or translation. वचन 2 में आप पढ़ेंगे, मैंने इस वचन को अलग अलग अनुवादों में पढ़ा। He says, वो कहते हैं, look at my servant. God says, look at my servant Jesus. देखो मेरे सेवक को देखो, Look at my son. He's like a tender green shoot sprouting in a dry, barren ground. मेरे बेटे को देखो, वह उसके समान अंकुर के समान
और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। We've just been thinking of a good ground, dug up and with all manure and water and बहुत ही ज्यादा उपजाऊ भूमि के बारे में बात कर रहे थे, जिसको खोदा गया है, जिसमें बहुत खाद डाली गई है, जो बहुत ज्यादा उपजाऊ और भली है। permeable, good, nice, loose soil where plant can grow. एक पारगम्य है और एक बिल्कुल खुला हुआ मिट्टी है जिसमें आराम से पौधे उग सकते But हैं। when God looked at Jesus, he said, "Look at my son. He's like a tender shoot growing in a dry, barren ground." पर प्रभु यीशु मसीह के लिए वो कहते हैं कि मेरे बेटे को देखो, वे उसके सामने अंकुर के समान, एक ऐसी जड़ के समान उगा है जो निर्जल भूमि में फूट निकले। Can hardly lift his that shoot grow. That shoot can hardly grow up in that barren ground. This world is a barren ground. इस निर्जल भूमि में जो कि ये दुनिया है, कितना मुश्किल है कि एक अंकुर प्रफुल्लित हो पाए। But God allowed his son to come and live in this barren ground and और प्रभु ने अनुमति दी कि उनका बेटा आए और इस संसार रूपी निर्जल भूमि में जिए, he grew up like a tender shoot in God's eyes. और वो एक निर्जल भूमि में उगा, एक अंकुर के समान उगा। In that barren ground. I thought how the father must have looked at him. मैं सोचती हूँ कि पिता ने किस प्रकार उस पुत्र को ऐसे देखा होगा। My son, my only son, I'm sending, who was with me from all eternity. मेरा पुत्र, मेरा इकलौता पुत्र जो अनंत काल से मेरे साथ था, उसको मैंने भेजा I'm sending him to this barren earth. और मैं उसको इस निर्जल दुनिया में, इस पृथ्वी पर भेज रहा हूँ। And he's struggling and growing up. और किस प्रकार वो इस संसार में जी रहा है, बढ़ रहा है, Like a shoot in that barren ground. एक अंकुर के समान जो एक निर्जल भूमि में फूट निकलती है। And in man's eyes, he's not at all attractive. और मनुष्य की नजरों से देखा जाए तो उसमें कुछ भी आकर्षित करने वाली, अपनी ओर आकर्षित करने वाली कुछ भी बात नहीं है। They would scarcely look at him. You read Isaiah 53 is like that. यशायाह 53 के 2 में अगर पढ़े तो उसमें ना तो कोई सुंदरता थी कि कोई उसे देखे और ना कोई रूप था। People won't want to look at him a second time. They उसकी ओर लोग दूसरी बार देखना तक नहीं चाहते थे। scarcely want to look at him and they say, "Is this a person standing in front of us? ये कौन है ये व्यक्ति जो हमारे सामने खड़ा है? Is this a person? Who is this standing in front of us?" ये है कौन जो हमारे सामने खड़ा है? कौन है ये व्यक्ति? In that barren ground, he's struggling to grow. Yet it says, he did that. In man's eyes, he was not at all attractive. पर यीशु उस निर्जल भूमि पर हमारे सामने खड़ा रहा, संघर्ष करता रहा। मनुष्य की नजरों में उसमें कुछ भी सुंदरता नहीं थी कि मनुष्य उसकी ओर निगाह उठाए। But in God's eyes, this is my beloved son. परंतु प्रभु की नजर में ये मेरा प्रिय पुत्र है। I'm sending him into this world. People may despise him मैं उसको इस पृथ्वी पर भेज रहा हूँ। लोग उसको तुच्छ जानेंगे and look down on him, but और उसको बड़ी नीची दशा से this देखेंगे। is God's son, beaten and bruised for our sake, ये परमेश्वर का पुत्र है जिसको मारा गया, जिसको घायल किया, जिसको चोटें दी गई हमारे कारण, bloodied and beaten for our sake, bearing our sins on his body. हमारे अपराधों को उसने देह पर लिया, लहूलुहान वो किया गया, मारा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया And slain and dying on the cross in humiliation, and blood coming from his head and from his side, from his hands and feet. वो शर्मिंदगी सह रहा था केवल हमारे कारण, हमारे पापों का बोझ उस पर था। खून की धारा उसके सर से, उसकी देह से बह रही थी, हाथों से पांव तक उसकी देह बह रही थी, उसका लहूलुहान शरीर था। And I said, Lord, here I am developing as a beautiful, want to be like a beautiful plant bearing fruit for you.
और प्रभु मैं सोचती हूँ यहाँ पर कि यहाँ मुझे देखिए, मैं कितना सुंदर पौधा हूँ जो मैं अपने प्रभु के लिए फलों को ला रही हूँ। But look at you, Lord Jesus. In God's eyes, you are a tender shoot. और मैं सोचती हूँ प्रभु, अगर आपकी ओर देखें तो आपको देखो, उस निर्जल भूमि में प्रभु अंकुर के समान आप फूट निकल रहे हो। Struggling, and only God could see how you struggled. And और आप वहां पर संघर्ष कर रहे हो, सिर्फ परमेश्वर ही जानते हैं कि आप कैसा संघर्ष प्रभु कर रहे थे। bore my sin, one who created the whole earth. Your blood drops were falling on that earth. आपने मेरे पापों को अपने ऊपर उठाया। आप इस पूरी पृथ्वी को बनाने वाले, आप ही का लहू प्रभु बूंद बूंद करके इस पृथ्वी पर गिर रहा था। Let me appreciate you, Lord Jesus, more प्रभु मैं आपकी सराहना करूं और आपकी सराहना करूं प्रभु। when I was reading that in Isaiah 53, and every time I read it, God speaks to me. Who has believed this? Who मैं यशायाह 53 में पढ़ रही थी, और जब भी मैं इस अध्याय को पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कितना भला अध्याय है। will believe this message? It says Isaiah 53. वो कहता है कि कौन कौन है जो इस समाचार पर विश्वास करेगा। To whom has the arm of the Lord been revealed? He grew up before him like a tender shoot and like a root out of a parched ground. He has no stately form or majesty that we should look upon him, no appearance that we should be attracted to him. He was despised and forsaken of men, man of sorrows, acquainted with grief. जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुज पर किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके समान अंकुर के समान उसके सामने और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। And like one from whom men hide their face, he was despised, and we did not esteem him. Surely our griefs he himself bore, our sorrows he carried, and yet we ourselves esteemed him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was pierced through for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The chastening for our well being fell upon him, and by his scourging we are healed. All of us, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to his own way, but the Lord has caused the iniquity of us all. निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हमें से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। Fall upon him. And says he will look upon the travel of his soul, and he'll be satisfied. Verse 11. As a result of anguish of his soul, he will see it and be satisfied. By his knowledge, the righteous one, my servant, will justify many. So wonderful to read that. 10 तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोषबलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके धर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। कितना अद्भुत वचन ये है। When we talk about plants growing up,
And we want to be like a fruitful plant. और हम बात करते हैं पौधों के उगने की और हम स्वयं चाहते हैं कि हम ऐसे पौधे बने जो बहुत फलवंत हों। We think we cannot forget our Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह को नहीं भूल सकते, who came to this earth and struggled in that dry earth, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए और इस पृथ्वी पर उन्होंने संघर्ष किया so that we can bear fruit. ताकि हम सब उसकी महिमा के लिए फल ला May सकें। the Lord bless each one of us. प्रभु हम सबको आशीष दे। There's so much which God has blessed me with by studying this parable. प्रभु ने इतनी बातें मुझे बताई, इतनी बातों से मुझे आशीषित किया है इस दृष्टांत को पढ़ने के पश्चात। And now we can ask the Lord to speak to us. Lord, let me be a fruitful plant. और हम अब प्रभु से बात करें कि प्रभु मैं भी एक ऐसा फलवंत पौधा बनने पाऊं। In the time of drought, उस अकाल के समय में मैं एक फलवंत पौधा बनने पाऊं। in the time when everywhere there's drought and dryness, the whole Christian world is drying up. मैं जब हर जगह पे अकाल पड़ा है, सूखा पड़ा है और इस मसीह समाज में सब कुछ सूखापन बढ़ा है प्रभु। We see pastors backsliding, falling into sin. देखते हैं कि पादरी हैं वो पछाड़ रहे हैं, वो पाप में पड़ रहे हैं। People having questions about all kind of political things, everything. राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो कितने सवाल मन में आ रहे हैं, हर जगह से अगर देखा जाए, हर परिस्थिति में। Even in churches. But Lord, in this time of drought, you want me to be like a tree planted by the water, परंतु प्रभु ऐसी परिस्थिति में भी आप चाहते हैं कि मैं ऐसा वृक्ष बनूं जो नदी के किनारे में लगा हुआ हो, bearing fruit, not just 30, but 100-fold. और ऐसा पेड़ जो फलवंत हो और सिर्फ 30 गुना नहीं बल्कि 100 गुना वो फल लाता हो। It's up to us. We can choose. I say, Lord, just little bit of fruit is enough for me. हमारे ऊपर है कि हम प्रभु से बोले कि प्रभु क्या थोड़ा सा ही फल मेरे लिए As काफी है। long as I'm kind sometimes and I'm patient a little bit with my children. कभी कभी जब मैं कोमल होती हूँ या मैं किसी के लिए बहुत अच्छी होती हूँ, उसी समय थोड़ा सा फल। No, the Lord wants us to have 100-fold, to bear 100-fold fruit. नहीं, प्रभु चाहते हैं कि हम 100 गुना फल लाएं, Maximum fruit, so that He look at us, He look at that fruit and be satisfied. ताकि ज्यादा से ज्यादा जब फल लाए और प्रभु हमारी ओर देखे तो वो तृप्त हो सके, वो संतुष्ट हो सके। Say the Lord, you prove that you are my disciples by bearing much fruit. वो कहते हैं यदि तुम बहुत फल लाओगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। May the Lord bless each one of us. प्रभु हम सबको आशीष दे। Shall we close in prayer? क्या हम प्रार्थना के साथ समाप्त करें? Our Heavenly Father, we praise and thank you for your wonderful word, so rich, so powerful. We ask you to break our hard hearts and speak right into our hearts. कि पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत वचन के लिए जो सामर्थी है। पिता, हमारे कठोर हृदयों को तोड़िए और हमारे हृदयों से बात कीजिए। And we pray that we'll have a desire to follow you, to be pleasing to you, just like you are pleasing to the Father, Lord Jesus. We want to be pleasing to you. We will have no regrets in eternity. हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर ये इच्छा उत्पन्न हो कि हम आपका अनुसरण कर सकें, आपको खुश कर सकें, ठीक जिस प्रकार आपने पिता को प्रसन्न किया, ताकि हमें अनंत काल के राज्य में प्रभु पछताना ना पड़े। Please help us. Lord, हमारी मदद कीजिए प्रभु। we are such weak people. We belong to this earth. We are made out of dust. प्रभु हम बहुत ही निर्बल हैं प्रभु, हम मिट्टी से बने हुए इंसान हैं प्रभु। Please help us. Make us heavenly minded. Lift our thoughts and our hearts closer प्रभु हमें पृथ्वी की ओर से हटाइए खुदावन, हमें स्वर्गीय बातों पर मन लगाने के लिए प्रभु ऐसा मन हमें दीजिए मेरे खुदावन। to you. So we want to have a hunger and thirst after you, a desire for spiritual things,
and desire to please you. सोचों को, हमारे हृदयों को अपने समीप लाएं प्रभु, ताकि हमें आत्मिक बातों के लिए भूख प्यास बढ़े, हम आपको प्रसन्न करने वाले बने प्रभु। To be better moms, to be better wives, better sisters in the church. हम अच्छी माता बन सकें अपने बच्चों के लिए, बेहतर पत्नी बन सकें प्रभु, कलीसिया में एक बेहतर बहन बन सकें। Everything, Lord, we want to be better so we can glorify you by bearing much fruit. We ask in Jesus' precious name. Amen. प्रभु, हर परिस्थिति में आत्मिक रीति से बेहतर बन सकें, ताकि उन आत्मिक फलों को अपने जीवनों से प्रकट करके हम प्रभु आपकी स्तुति और आपकी महिमा कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।